ਜਾਏਗਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ का अर्थ ਜਿਸੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ, ਰੰਗ, ਨਸਲ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ, ਸੰਪत्ति, ਇੱਜ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ। ਅਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। फिर है असमानता सामाजिक होती है क्योंकि ये अमीर गरीब है, ये सारी क्या है असमानता, पदवी, पैसा, संपत्ति, शक्ति, तो ये क्या है हर समाज में पाई जाती है। फिर है असमानता इच्छा अनुसार नहीं बदल सकती। फिर है ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ, ਪਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ, ਫੋਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ, ਮੱਧ ਯੁੱਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ तुलनात्मक है। तुलनात्मक या प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटी इज ए कंपैरेबल। जैसे कि किसी की कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई हेडमास्टर है, कोई चपड़ासी है, कोई कलेक्टर है, कोई राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि हर एक हम देखें तो हम रैंक के अकॉर्डिंग भी क्या है इनइक्वालिटी है। ये पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ तो ये सारा क्या है क्लास है। फिर है इसके कुछ हम प्राकृतिक आधारों की बात करेंगे यहाँ पर। छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे इसके आधार है दो तरह के होंगे हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि असमानता के आधार दो है, एक प्राकृतिक आधार है, दूसरा सामाजिक आधार है। तो प्राकृतिक आधार वो होते हैं जो कि हमें अपने नेचुरली हमें मिलते हैं, है ना, बाय बर्थ। फिर जैसे हमारी एज है, जैसे है ना पहले छोटे होते हैं फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम 18 साल तो पहला आप वोट नहीं पा सकते, है ना, तो ये सारे क्या है प्राकृतिक। हमारी एज हो गया, हमारा रंग गोरा काला, है ना, गेहुआ, हमारा रेस यानी कि प्रजातियां जैसे मतलब गोरी नस्ल वाली प्रजाति, मंगोलाइड मतलब पीली नस्ल वाली प्रजाति, नीग्रो यानी कि काली नस्ल वाली प्रजाति, है ना। इस तरह से ये अलग अलग प्रजातियां हैं, ये भी क्या है बाय बर्थ। फिर है जन्म बाय बर्थ। और क्या चीज है जैसे कि असमानता जिस ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ इशारा असमानता को ही इशारा करते हैं। तो ये सारे जो आएंगे वो सारे कौन से आ जाएंगे जी हमारे नेचुरल बेसिस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोशल
बेसिस, सोशल बेसिस में कौन-कौन से आ जाएँगे जी? जैसे ऑक्यूपेशन, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਸਤਰੀਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ घटिया समझा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। फिर है एजुकेशन, है ना, एजुकेशन में इनइक्वालिटी, किसी ने बीए करके पढ़ाई छोड़ दी, एमए कर ली, पीएचडी तो हायर एजुकेशन ले ली, किसी ने कोई कंपैरेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच कोई भाग लेके अच्छी और भी पोस्ट ले ली। तो एजुकेशन किसने कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेकर अच्छी जॉब्स लेनी है, तो ये हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग इनक्वालिटी आ जाएगी, है ना। फिर है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी किसी के पास कम प्रॉपर्टी है, किसी के पास ज़्यादा है। फिर इनकम है, किसी की कम इनकम है, किसी के ज़्यादा है ना। खान पीन के तरीके, कपड़े पहनने का पद्धर है, ऐशो इशरत दे पद्धर, है ना। शक्ति, किसी के पास सोसाइटी में क्या है, कहीं पर धार्मिक बात करें तो पाखंड है, पुजारी, मौलवी, पादरियां अनुप्राप्त शक्ति है कहीं पॉलिटिशियन पार्ट। फिर आ जाती है रैंक, तो रैंक क्या है, किसी की स्थिति क्या है, पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी की अच्छी है, किसी की कम है। तो इस तरह से हमारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो कि असमानता क्यों मौजूद है? क्यों मौजूद है? क्योंकि प्राकृतिक अंतर है, निजी संपत्ति के कारण भी है, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर के कारण भी है। किस कारण भी हो सकती है? युद्ध ते जित के कारण भी हो सकती है भी, है ना। जैसे राजे महाराजे आए, युद्ध में हमें जीत लिया, अपने आप को ऊंचा समझते थे वो, है ना, सम्मान देते थे खुद को, ज्यादा पैसे वाले हो गए, हमारा पैसा हमसे लूट लिया, है ना। तो समानता, उनके पास क्योंकि शक्ति थी, हम हमारे पास शक्ति कम थी, है ना। समाज की कार्यात्मक जरूरत है, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी, सब एक जैसे हो जाएंगे, तो सब कहेंगे मैं काम क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं वाली भावना। तो असमानता ਨੂੰ दूर करने के कुछ तरीके भी है ना। सब तो पहला ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ असमानता, जैसे कि अब देखो SC ST के स्टूडेंट्स के लोगों के लिए, है ना, आरक्षण बढ़ाया गया। फिर जब जो जनरल कैटेगरी में आते थे उनके लिए भी कोई कुछ था नहीं, है ना, सेक्शन। जनरल कैटेगरी में तो लोग आ जाते थे, लेकिन उनको क्या मिलता था? उनको ये मिलता था कि आप जनरल में आ गए हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी एज बहुत कम डाली गई है, इतनी एज तक आप दे सकते हो, भले ही फिर आप गरीब हो या अमीर हो। अगर कोई गरीब है और वो जनरल कैटेगरी में आ गया है, तो भाई उसको तो उतनी ही फीस भरनी पड़ेगी, बाकी जो अमीर लोगों के बच्चे फीस भरेंगे जिनके पास कम पैसा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सहूलतें करते हुए बहुत ही अच्छा एक अमेंडमेंट करा है, एक नया जो डाला है उन्होंने सेक्शन, कॉलम डाला है, SC ST OBC के साथ में EWS डाल दिया है, जिसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से जाना जाता है, जो उन बच्चों के लिए होता है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों को क्या है कि आप, अगर आपकी आमदन कम है तो आप सर्टिफिकेट देकर और अपनी जॉब के अकॉर्डिंग जो मार्क्स आपको मिलते हैं, आप अच्छी जॉब ले सकते हो, बता सकते हो कि जी हम जनरल कैटेगरी में तो है बट हम आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो अब देखिए ये आ गए जी दूर करने के तरीके। फिर है इसके कुछ तत्व है, एक है डिफरेंशिएशन है, फिर डिफरेंशिएशन आ जाएगा इनकी, सॉरी, सामाजिक स्तरीकरण के तत्व। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।